السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے ایک ایسے صحابی جن کی شہادت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی، دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی چند آیات ہیں۔ خداوند کریم نے ان آیات میں مقام شہداء بیان فرمایا۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دین و اسلام اور عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو خداوند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں۔ دنیا والوں کو ان کا مقام اور ان کی عظمت جتلا رہے ہیں کہ جو آدمی خالصتاً صرف میری رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے، حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، شہداء آئیں گے، اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں نے تمہیں سرخ یاقوت سبز یاقوت کے محل عطا کر دیے، اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ شہید عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا جاؤ تمہیں اتنی حوریں، اتنے غلمان، اتنی نہریں، اتنے باغ و بہار میں نے عطا کر دیے۔ پوچھا جائے گا تم راضی ہو؟ شہید کہتے ہیں کہ نہیں۔ جنت کے بالا خانے مل جائیں گے اور نعمتیں ملیں گی، خداوند کریم نہ جانے کیا کیا انعام فرمائیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا خود مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے اے پروردگار عالم، یہ جنت کے بالا خانے، یہ محل، یہ باغ و بہار، یہ نہریں، یہ حور و غلمان، یہ تمام کی تمام لذتوں والی شے ہیں، ٹھیک ہے، پر اے پروردگار عالم اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو، خدا کی قسم او مالک، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، او مالک بے نیاز، پھر دنیا میں پیدا کر دے، اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آیا وہ جنت میں کہاں ملے گا؟ اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی بارش ہو، اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو، اگر ہماری دل جوئی ہو، اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے تو اے پروردگار عالم ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو، اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو، تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مالک تیری راہ میں 100 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی۔ مقام شہادت بڑی اونچی شے ہے، پروردگار عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے، اس میں بڑا سرور رکھا ہے، اس میں بڑا کیف رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شہداء کی عظمتوں کو دیکھو، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، کوئی شہداء خندق ہے۔ کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے، کسی شہید کے پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے۔ خدا کی قسم ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے۔ پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے بدر آ گئے۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے حنین آ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شہدائے خندق ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے یرموک ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے تبوک ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے کربلا ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے حنین ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں وادی کے شہید ہیں، بیر معونہ پہ ہونے والے شہداء ہیں۔ آواز آئے گی او شہید ہو، تم تو سارے شہید ہو، وہ سید شہداء کہاں ہے؟ تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، میں خدا کا شیر، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے؟
उलमा इकराम ने लिखा है, कोई शहीद अपना बाजू कटा हुआ लेकर आएगा, कोई शहीद अपना सर कटा हुआ हथेली पे लेकर आएगा, आएगी अमीर हमजा की बारी, टुकड़े आएंगे। खुदावंद करीम ने मकाम शहादत तो बड़ा ऊंचा रखा है, लेकिन परवरदिगार आलम ने अजमतों के लिहाज से सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो नवाजा, फरमाया पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद शुहदा हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन, फरमाया सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे शहीदों के सरदार हैं। अब ये तो मेरी तेरी गलती है, ये गलती तेरी नहीं बल्कि मेरी है। मैंने तुम्हें अमीर हमजा का मकाम ना बताया, पैगंबर के चचा की अजमत ना बताई, पैगंबर की चचा का मर्तबा ना बताया, दिन कभी ना बतलाया, महीना कभी ना बतलाया। खुदा की कसम, और तुम मुसलमान कहलाते हो। आज तक लोगों ने पैगंबर के प्यारे चचा का यौम ने कभी यौम नहीं मनाया। किस अजमत के साथ दीन और इस्लाम कबूल फरमाया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम मोहतरम में तशरीफ फरमाए, अकेले बैठे हैं। अबू जहल सामने से आया और आके कहने लगा, क्या प्रोग्राम बना रहे हो, क्या स्कीम सोच रहे हो, क्या मंसूबा बंदी हो रही है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। जालिम ने पत्थर उठाया, आमना के दुर्रे यतीम के सर में दे मारा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलूम है, साथी नहीं, फौज नहीं, लश्कर नहीं, जमात नहीं, तने तन्हा है, गुर्बत है, इफलास है। सर से लहू की धार तो छूटी मगर खामोश रह गए। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम को अपने घर पे तशरीफ लाए। बांदी कहने लगी, तुम्हें मालूम भी है आज मक्के की चौधरी ने तेरे यतीम भतीजे को मारा है। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बर्दाश्त न कर सके, उसी वक्त कमान उठाई, हरम मोहतरम में जा पहुंचे। देखा अबू जहल बैठा है, जाकर के कमान सर में मारी, लहू की धार निकाल दी और कहा, तुमने मेरे यतीम भतीजे को अकेला समझा है, तुमने लावारिस समझा है, तुमने बेवार सा समझकर मेरे यतीम भतीजे को मारा, बेकस बेबस समझकर मेरे यतीम भतीजे को मारा है। खुदा की कसम, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे भतीजे की तरफ तुम आंख नहीं उठा कर देख सकते। आज इन हजरात की शान में गुस्ताखी करना बड़ा आसान है, सहाबा कराम की बेअदबी करना बड़ा आसान है, इनको गालियां गलौज करना बड़ा आसान है, इनको तानाजनी करना बड़ा आसान है, इनको तरह तरह के गालियां निकालना बड़ी आसान है। खुदा की कसम, जब पैगंबर के सर में पत्थर लगे बदला लेने के लिए, तुम में से कौन गया था? तुम कहां थे? और अगर तुम उस वक्त भी होते तो बेईमानी से काम लेते, मुनाफिकत से काम लेते। अमीर हमजा की हालत कुफर है, अभी मुसलमान नहीं हुए लेकिन खून का जोश आया और सर में कमान मारी और वापस आए। फरमाया, मेरे भतीजे राजी हो जा, गम ना करियो, मैं तेरा बदला ले आया हूं, मैंने तेरा बदला ले लिया, इंतकाम ले चुका हूं मैं तेरा। खुदा की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा, बार बार कहा अमीर हमजा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने बदला ले लिया, मैंने इंतकाम ले लिया। हुजूर ने जवाब न दिया। बिलाखिर जब बार बार कहने लगा तो फरमाया, मेरे चचा, अगर मुझे राजी करना चाहते हो, खुदा की कसम मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूं लोग मुझे पत्थर मारे मैं माफ कर दूं, लोग मुझे जख्मी करें, लोग मुझे परेशान करें, मैं उसी वक्त माफ करता चला जाऊं। मैं बदला लेने के लिए हरगिज नहीं आया, मैं इंतकाम लेने के लिए हरगिज नहीं आया। फिर मेरे भतीजे, मैंने तो तेरा बदला ले दिया है। फरमाया, मेरे चचा, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो जल्दी करो, कलमा पढ़ो। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। नबी पर पहले भी जान छिड़कते थे और उसके बाद तो वो गुलामी की है, वो जानिसारी की है कि तारीख शाहिद है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने चचा को याद करके रोया करते थे। दुनिया ने देखा, शव्वाल की 15 तारीख सोमवार और पीर का दिन ग़ज़वा उहद हुआ। जंग बदर में सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। बड़े बड़े बहादुर काफिर तैयारी करके आए हैं।
सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कईयों को ठिकाने लगा दिया। हारिस तैमी कहते हैं मैंने देखा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुतर मुर्ग की पर का झंडा बनाया हुआ था और एक हाथ में झंडा था और एक हाथ में तलवार थी। जिगर को जाते काफिरों की सफ़े पलट जाती। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने बदर के मैदान में देखा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरफ से जाते हैं काफिरों में भगदड़ मच जाती है और जो बहादुर से बड़ा बहादुर काफिर सामने आता है चैलेंज करता है आओ मेरे मुकाबले में। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन आगे बढ़कर तलवार का वार करते थे। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा अमीर हमजा ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असदुल्लाह व असदु रसूली, खुदा का भी शेर है मेरा भी शेर है। बड़े बड़े काफिरों को जब कत्ल किया था और मक्के के काफिर भाग गए, मक्के में जाके शोर हुआ जब तक अमीर हमजा को कोई कत्ल ना करे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। खुदा की कसम इन हजरात के यहाँ बड़ा कुछ सोचा जाता था, हमारे यहाँ तो सोच विचार का मादा ही खत्म है ना। ये बड़ा कुछ कर गुजरते थे। बहादुर तो बहादुर रहे, बड़े बड़े माजूर सहाबी, गरीब सहाबी, नादार सहाबी, माजूर सहाबी भी पीछे रहने के लिए तैयार नहीं होते थे। उलमा इकराम ने लिखा है एक सहाबी के बदन पे 80 के करीब तलवारों तीरों के जख्म है, हाथ सालिम नहीं, पैर सालिम नहीं, सर में जख्म पे जख्म है, सीने पे जख्म है, पीठ पे जख्मों की गिनती नहीं, टांगों पे रानों पे जख्मों की गिनती नहीं, और मैदान जिहाद में पड़ा है और मुंह के बल अपनी कूड़ियों के बल आगे को फिर भी घिसट रहा है, मैदान जिहाद की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाई की तरफ आगे को खिसक रहा है। सहाबी की नजर पड़ी, अल्लाह वाले अब तो आराम कर, तेरा आखिरी वक्त है। रो के कहने लगा तुझे क्या मालूम है, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माजूर सहाबी है, हाथों की बल चलता है, पैर है नहीं। औरत ने आके कह दिया मैदान जिहाद गर्म था और अमर बिन जमूह सारा मदीना बड़ा खुशी मना रहा है, मैं बड़ी रंजीदा हूँ, मैं मदीने की औरतों में बैठने के काबिल नहीं, सबके खामिन जिहाद में चले गए, मेरा खामिन घर बैठा है। माजूर को निकाल लाई। बदर का बदला लेने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए कुफारे मक्का ने, सारे कुरैश ने चंदे किए, दौलत जमा की, सवार जमा किए, सवारियां जमा की, बड़े बड़े बहादुर जमा किए, गुलामों से आजादियों का वायदा किया। इन हजरात के तकवे और जुर्रत का क्या कहना सहाबा इकराम और सहाबियात का। आज आप तो 1 मिनट में शिरक कर बैठते हैं, मिनट में मर्द औरत मुशरिक बन बैठते हैं। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया है, हम सब की माँ है, पैगंबर के घर में है। अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने के लिए मदीने आया, घर में आया, हुजरे में आया। जब बेटी को सलाम किया और जवाब मिला, बात हुई, उम्मे हबीबा ने दौड़कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया जिस पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू सुफियान देख रहा था, खड़ा हुआ था, कहने लगा बेटी गुस्ताख हो हो, लोग अपने बाप के लिए बिस्तर बिछाया करते हैं, तुमने बिस्तर लपेट के रख दिया। कहने लगी अब्बा मेरे हो, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नीचे बिछा सकती हूँ, मेरे बाप हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन याद रखो मैंने इस घर में आकर अदब सीख लिया है, बिस्तर नबी पाक का है और अब्बा मुशरिक काफिर नापाक है, नबी के बिस्तर पर पलीत को नहीं बिठाया जा सकता। आज हम तो सारे मसलों में गुजारा कर लेते हैं नहीं ही करके, मगर जीदा करना पैंदा है। अबू सुफियान ने टोका, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दो टोक जवाब दे दिया। कहने लगी अब्बा जान तुम्हें मालूम होना चाहिए बिस्तर इमामुल अंबिया का है, बिस्तरा रहमतुल लिल आलमीन का है, तुम्हें मालूम है साक़ी कौसर शाफी महशर का बिस्तर है और तुम अभी शिर्क की लानत में गिरफ्तार हो। उठाकर रख दिया बिस्तर, कोई लिहाज नहीं किया। सहाबा इकराम के यहां, 'सहाबा-ए-किराम के यहाँ सर देना आसान था, शिर्क की बात सुनना या करना मुश्किल था। 'सहाबा-ए-किराम के यहाँ सर देना आसान था, शिर्क की बात सुनना या करना मुश्किल था। 'सहाबा-ए-किराम के यहाँ सर देना आसान था, शिर्क की बात सुनना या करना मुश्किल था। 'सहाबा-ए-किराम के यहाँ सर देना आसान था, शिर्क की बात सुनना या करना मुश्किल था। 'सहाबा-ए-किराम के यहाँ सर देना आसान था, शिर्क की बात सुनना या करना मुश्किल था। 'सहाबा-ए-किराम के यहाँ सर देना आसान था, शिर्क की बात सुनना या करना मुश्किल था। 'सहाबा-ए-किराम के यहाँ सर देना आसान था, शिर्क की बात सुनना या करना मुश्किल था। 'सहाबा-ए-किराम के यहाँ सर देना आसान था, शिर्क की बात सुनना या करना मुश्किल था। 'सहाबा-ए-किराम के यहाँ सर देना आसान था, शिर्क की बात सुनना या करना मुश्किल था। 'सहाबा-ए-किराम के यहाँ सर देना आ
सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए। हिंदा का अब्बा, हिंदा का भाई, हिंदा का चचा, कई रिश्तेदार बदर में कत्ल हुए। रोई कुरैश के सामने खड़ी होकर, अरे तुम सारे मर गए, मेरा खानदान मुका दिया। अमीर हमजा ने, तुम बदला लेने के लिए तैयारी करो। शव्वाल का महीना था, 15 तारीख थी। ओहद पर आ पहुंचे कुरैश ने, आकर के हमला कर दिया। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्रे पर, पहाड़ का जो दर्रा था, 2 सहाबियों को वहां बिठाया। जब तक मैं ना कहूं यहां से मत हिलना। 2 थे या 4 थे की जमात थी। इब्तदान मुसलमानों को फतह हुई, काफिर भाग निकले। अब वो जो दर्रे पे बैठे थे ना, उनमें इख्तिलाफ हो गया। एक कहने लगा कि हुजूर ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं तुमने यहां से उठना नहीं। दूसरे कहने लगे नहीं भाई, हुजूर ने तो लड़ाई के लिए फरमाया था ना। लड़ाई खत्म हो गई, वो भाग गए, अपनी फतह हो गई। अब यहां बैठ के क्या करेंगे भाई? अब यहां बैठने से क्या फायदा? इज्तिहादी गलती हो गई। गोया ये समझा कि हुजूर ने हमें यहां बैठने का हुक्म लड़ाई के वक्त तक का दिया है। बस वहां से उठ के चले आए। भागते हुए काफिरों ने जब वो दर्रा खाली देखा, मुसलमान बेफिक्रे थे, माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, वहां से आकर हमला कर दिया। चुनाचे पैगंबर के चहेते 70 सहाबा शहीद हो गए। और हालत ये बनी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को काफिरों की एक जमात ने आकर के धक्का दिया। हुजूर एक पहाड़ की गार में गिर पड़े। आपने जो खोद टोपी पहनी हुई थी, उसकी जंजीर, उसका हल्का कड़ी हुजूर के प्यारे प्यारे चेहरे अनवर में घुस गई। लहू की धार दूर जाके पड़ी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात आ पहुंची, काफिरों को मार भगाया, मगर हुजूर जख्मी हो गए। मदीना मुनव्वरा में शोहरत हो गई। हुजूर ने उज़ बिल्लाह शहीद हो गए। खुदा की कसम, मदीने के यतीमों ने कोहराम मचा दिया। हमारा वारिस कौन बनेगा? मदीने की बेवाओं ने शोर मचा दिया, रो रो के हंगामा कर दिया। मदीने में अंधेरा छा गया। यतीम रोए, बेवा रोई, मजलूम रोए, बेकस रोए, बेबस रोए, अपाहज रोए, मोहताज रोए, सारा मदीना रोया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद जी के क्या करेंगे? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जख्मों पर मरहम पट्टी की जा रही है। इत्तला मिली, अल्लाह के पाक पैगंबर तेरे प्यारे चचा को शहीद कर दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी अमीर हमजा की बहन है, दौड़ी दौड़ी जाती है। हुजूर ने फरमाया जुबैर जरा दौड़ो, औरत जात है, मैंने सुना लाश का हाल ठीक नहीं, जाके रोको। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और सफिया से कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने तुझे आगे चलने से मना कर दिया। जरा तवज्जो करना, यह है ताबेदारी, यह है गुलामी, इसका नाम है मुसलमानी। कहते हैं सफिया ने जो पैर आगे रखने के लिए उठा रखा था, वो भी पीछे को वापस रख दिया। पैगंबर ने रोका है। पैगंबर के रोकने के बाद अगर एक कदम आगे मैंने बढ़ाया तो कोई जहन्नुम में न चली जाए। सहाबियात एक कदम आगे नहीं रखती नबी के फरमान के खिलाफ। यहाँ 100 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 60 बरस की जिंदगी सारी की सारी पैगंबर के फरमान के खिलाफ गुजर रही है, सारी की सारी है। एक गुनाह करना और एक उस पर सीना जोरी करना। आजकल तो गुनाह भी करते हैं और घमंड भी करते हैं। बड़े बड़े अच्छे लोग गुनाह को इबादत बना लेते हैं। अगले दिन मैंने एक हाजी से कहा, मैंने कहा हाजी साहब तुम्हारे यहाँ भी टीवी लगा हुआ है? कहने कारी साहब आपको पता नहीं, इसमें खबरें बड़ी साफ आती है। लानत के एरियल लगे हुए चारों तरफ, लानत के एरियल, लानत पकड़ो हर तरफ जाने आने वाले। मौलवियों ने लगा लिए, हाजियों ने लगाए हुए हैं, एड्डी एड्डी दाढ़ी है। घर में जाके देखो तो इतना बड़ा संदूक सा रखा हुआ है। शाम को हाजन, हाजी की औलाद, बेटी, नूहें सारी इकट्ठी हो जाती हैं जैसे मरे हुए कुत्ते पड़े हो, और बड़े बड़े फलसफे बताते हैं। और ये बच्चे दूसरों के यहां जाते हैं। अच्छा, अब तो बच्चों को जंजीर डाल दी तुमने।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मेरी तेरी शक्ल नहीं, मेरा तेरा अकीदा नहीं, मेरी तेरी नमाज नहीं, मेरा तेरा अमल नहीं, सारी जिंदगी खिलाफ है, शादी भी, मरना भी, जीना भी। मगर ये औरत जात है, अंदाजा लगाओ, जिसकी माँ जाए भाई के टुकड़े हो गए हो, बहन का कलेजा फट गया हो, जिगर फट कर मुंह को आया हो, ऐसे वक्त में अमल का क्या मतलब। मगर हजरत जुबैर की कहने पर सफिया ने कदम नहीं बढ़ाया। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, और मेरे बेटे जुबैर जाओ, मेरे आका से जा के कहो, जब से मैंने कलमा पढ़ा मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं जजा फजा नहीं करूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी, मैं कपड़े नहीं फाड़ूंगी, मैं अपने आप को नहीं नोचूंगी, मैंने सब्र करना सीख लिया है। खुदा की कसम क्या मंजर होगा, क्या वक्त होगा, इधर सफिया चली उधर इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। बड़े बड़े शहीद हुए, मगर ये शहीद निराला है। खुदा की कसम एक वो शहीद है आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला, जब नेज़ा मारने वाला कहता है मैंने नेज़ा मारा, आह ना की, हाय ना की, उफ ना की, दर्द का इजहार नहीं, करब का इजहार नहीं, किसी चीज की परेशानी का इजहार नहीं, सिर्फ इतना जुमला मुंह से निकला, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, ओ लोगों गवाह हो जाओ, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। उधर हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चली हैं, इधर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, खुद जख्मी है, लहू रिश्ता है चेहरे मुबारक से। खुदा की कसम लोगों, जिस कुरान को आज तुमने यतीम बना रखा है, जिस दीन को आज तुमने अपना मोहताज समझा हुआ है, जिस इस्लाम को आज तुमने अपनी नजरों में मजलूम बना रखा है, खुदा की कसम नबी के तुम फूंक मार कर जन्नत में जाना चाहते हो। इसलिए मजदूब कहता है वाह गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, कहता है वाह गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। वाह गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, और देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। रागुजर दुनिया है बस्ती नहीं, होश कर कुछ जाए मस्ती नहीं। सहाबा ने गर्दन कटा ली, टुकड़े करा दिए, और आज तू अपने आप को क्या समझे फिरता है। बड़ा ही अकड़ा रहता है हर वक्त, रात दिन अकड़ के बगैर काम कोई नहीं। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर हजरत सफिया आ रही है, ओहद के दामन में सैयदना अमीर हमजा की मैयत पे पहुंचे। खुदा की कसम तारीख शाहिद है, पैगंबर पहुंचे, पैगंबर ने अपने प्यारे चचा के चेहरे पे नजर डाली तो नाक नहीं, इधर उधर नजर डाली तो दोनों आंख नहीं, और जरा नीचे को जाके देखा तो दोनों लब नहीं। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, जरा जिगर पे हाथ रख के सोचो, पैगंबर के दिल पे क्या बीती होगी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहादुर शेर दलेर प्यारे चचा के मुंह में झांक के देखा तो जुबान नहीं, और थोड़ी सी नजर नीचे को की तो पेट में जिगर और कलेजा नहीं। एक तो ये हालत देखी, इसका गम, इसकी परेशानी, और फिर जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, ऐसे वक्त में अगर कोई चिढ़ाने वाला भी आ जाए तो क्या जख्मों पे नमक नहीं छिड़का जाता। उधर और पहाड़ के दामन से आवाज आती है, और आवाज आती है कि हजरत को दिखाती थी हिंदा, हजरत को दिखाती थी हिंदा, खा खा के कलेजा हमजा का। उधर से आवाज आती है, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजा, देख ले मैं तेरे प्यारे चचा का जिगर चबा रही हूं। हदीस की किताबें उठा करके देखो, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, कपड़े भी उतार कर ले गए। कम से कम पैगंबर के प्यारे चचा के 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, तबीयत परेशान हो गई, खड़े न रह सके, बैठ गए।
आसमान की तरफ चेहरे अनवर उठाया और झोली फैलाई और फरमाने लगे, ओ ज़मीन और आसमान के मालिक, अब तो तू राजी हो जा। ये देख मेरे प्यारे चचा का क्या हाल बना पड़ा। और फरमाया, अगर सफिया औरत यहाँ ना पहुंची होती, अगर मेरी फूफी ना आई होती, औरत जात यहाँ ना पहुंचे होती, तेरे जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरी आबरू की कसम, मैं अपने चचा के टुकड़ों को यहाँ से ना उठाता। अगर तू यूं ही राजी है तो मैं तुझे यूं ही राजी रखता कि तेरा दीन बुलंद होता चला जाए, मेरे प्यारों का कीमा बनता चला जाए। सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी है, रोती नहीं। सफिया, तेरे भाई का क्या हाल है, तू रोती क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं करती? कहती है, मेरा अकीदा कुछ और है, मेरा यकीन कुछ और है, मेरा ईमान कुछ और है। कहती है, रोए तो वो जो कायल हो अम्माते शहीदों के, रोए तो वो जो कायल हो अम्बाते शहीदों के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों कपड़े फाड़ूं, मैंने कोई कुरान पढ़ा है, मैंने तो कुरान पढ़ रखा। वाला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात, मैं कुरान पढ़ के आई हूं, मैंने कुरान करीम पढ़ा हुआ है, जो मेरी राह में मारा गया। फरमाया, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा हो जाता है। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा टुकड़े को इकट्ठे किए बैठी है, अपने भाई का चेहरा देख रही है, जख्मी बदन देख रही है, सारे टुकड़े हुए पड़े हैं। झोली फैला के कहती है, ओ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर पे ही सुन लिया था कि कपड़े उतार कर ले गए हैं काफिर लोग। 2 चादरें लेके आई, मेरे भाई पे कफन डालो, नंगा कर गए, टुकड़े हैं। दूसरी तरफ नजर पड़ी एक अंसारी सहाबी शहीद हुआ पड़ा, कपड़े उसके भी उतार लिए गए। तवज्जो कर मुसलमाना, नबी ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने उस वक्त ये फरमाया नहीं, मगर नबी की तालीम का असर देखो, नबी की सीरत साजी का असर देखो। सफिया कहती है, लोगों मेरी चादरें वापस करो मेरे भाई पे डालने से पहले। क्यों? कहने लगी, चादरें 2 हैं, एक माजाया भाई है, एक वो है जिसने मैंने और मेरे भाई ने एक पेट में परवरिश पाई है, एक माजाया भाई है, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शरीक भाई है। अगर मैंने सिर्फ अपने पे चादर डाल दी दोनों और दूसरे को नंगा दफन किया, कल कयामत में खुदा ये न पूछ ले सफिया अगर कुछ देने आई तो अपनों को दे के चली गई। आज हमारे यहां लेना देना ही बड़ा अजीब है। असल तो किसी को देने की हमें ताकत नहीं होती, सोचते सोचते मर जाते हैं। और अगर दे भी दिया तो जब तक उसे बर्बाद ना कर ले उस वक्त तक हमें चैन नहीं आती। किसी तालिब इल्म को, किसी भाई भतीजे को, किसी बहन भांजी को अगर कभी ज़कात खैरात दे दी है, औरतें मेढ़ा मारती हैं, अब मूल्य की बातें करती हो, हमारे यहाँ की ज़कातें खाती रही हो, हमारे फितराने तुमने खाए। मौलवियों को मेढ़ा मारते हैं, ये भी ज़कातें खा के पलते हैं, ये फितराने खा के पलते हैं। तुम क्या खा के पलते हो तुम्हें पता नहीं है? खुदा की कसम, तुम्हारी ज़कात खाकर, फितराने खाकर, तुम्हारी गालियां खाकर, तुम्हारे मताने मेहने सहकर इन बुजुर्गों ने, इमामों ने, खतीबों ने, उलमा ने, अल्लाह वालों ने दीन मतीन की पहरेदारी की, कुरान मजीद की हिफाजत की, उसकी तरक्की रिशात के लिए सारी उम्र गुजार दी। खुदा की कसम, जब मरोगे तब पता चलेगा कि इन लोगों का क्या मकाम है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा। ईमानदारों, अपने सदक़े को बर्बाद ना करो मुंह पे लाकर, जतला कर।
اور کہتا ہے احسان کر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا اس طرح سے دے کہ دستے گدا کو خبر نہ ہو، بور کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا، اور جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو، کوئی چیز سامنے نہ آئے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو، ایک چادر میرے کلمہ شریک انصاری بھائی کو دے دو۔ پھر پتا چلا، یاد آیا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے۔ فرمایا اگر میں نے اپنے بھائی کو بڑی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی غیر پر چھوٹی چادر ڈالی، کل قیامت میں خداوند کریم یہ نہ فرما دے اپنے کو بڑی دی غیر کو چھوٹی دی، قیامت میں خدا کی دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ ہمارے یہاں تو جو چیز ہمارے مطلب کی نہ ہو، وہ ایک عورت کہنے لگی نو تھی اپنی ساس کو کہ خالہ دال شام کی بھاجی خراب ہو گئی، کہ اچھا طالب علم آئے گا نا روٹی لینے مدرسے کا، اس کو دے دیو، جو بھاجی جو دال بگڑ جائے وہ طالب علم کو دے دو، اللہ نہ جو اچھی چیز ہو وہ اپنے مطلب کی، یعنی خدا اسی لیے ہے کہ ماری چیز اسے دیتے جاؤ۔ بڑے بڑے لوگوں کے ہم نے پکھنڈ دیکھے، سارے سال میں جس کپڑے والے کا کپڑا نہ بکا، چھوٹے گاہک نے بڑے گاہک نے جس نے کپڑا لیا ہی نہیں، وہ کپڑا پھر رمضان کے قریب آ کر زکات، انہوں نے کہا یہ 2 سال کا پڑا ہے، یہ چھینٹ کا تھان زکات میں لگا دو اسے۔ ایمانداری سے بتا، اللہ میں ہماری نیتوں سے واقف نہیں، ایک ایک رگ کے خون کے قطرے سے وہ واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان چادروں کی قرہ اندازی کرو، چنانچہ قرہ اندازی کی گئی۔ اللہ کی شان دیکھو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آتی ہے، انصاری صحابی کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، افلاس کی حالت دیکھو، غربت کی حالت دیکھو، پیغمبر کے گھرانے کی حالت تو دیکھو۔ ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چادر ڈالی گئی، اور چادر کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، حضور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے چچے کا کیا حال بنا ہے دین اسلام کی وجہ سے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، ان لوگوں کو مردان خیال بھی نہ کرو جو میری راہ میں ٹکڑے کرا گئے۔ کہ عورت کے پیچھے مرے گا، کوئی زمین کے پیچھے مرے گا، کوئی ٹویل اور نہری پانی کے پیچھے مرے گا، کوئی دکان اور مکان کے پیچھے مرے گا، کوئی پیسوں ٹکوں کے لینے دینے کے پیچھے مرے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام امام الانبیاء اور اللہ کے احکام اور اسلام کی عظمت پہ مرے گا۔ عرض کیا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں۔ فرمایا میرے چچا کے سر ڈھانپ دو، پیروں پہ درختوں کی پتے ڈال دو، اندازہ لگاؤ، کیفیت کا اندازہ لگاؤ۔ ارے یہ سارے شہید اور تو بعد کے ہیں، خدا کی قسم یہ کتنی عظمتوں کا مالک شہید ہوگا، یہ کتنا بڑا شہید ہوگا جس کی قبر پر حضور آنسو بہا رہے۔ فرمایا میرے چچا اللہ تجھ پر کرم کرے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ سید الشہداء حمزہ کے الفاظ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، لہذا ان کے مقابلے میں کوئی شہید سردار نہیں ہو سکتا۔ وہ تیرے ہاتھ میں ترازو تو نہیں کہ جس کو چاہے گھٹا دے، جس کو چاہے بڑھا دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ یہ تو خدا اور خدا کے رسول کے ہاتھ میں، پیغمبر نے فرما دیا اسد اللہ و اسد رسولی، خدا کا اور میرا شیر ہے سیدنا امیر حمزہ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کے پتے جب پڑے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا عظمت ہے! اور آج بھی حاجی لوگ جب مدینہ پاک جاتے ہیں، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب سے گزرتے ہیں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، امیر حمزہ کی قبر سے آواز آتی ہے، زبان حال سے کہتا ہے پاکستانی حاجیوں کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اسلام چاہتے ہو مگر قربانی نہیں دیتے؟ آؤ مجھ سے پوچھو کہ میں نے اللہ کے نام پر 11 ٹکڑے کرائے تھے۔ ادھر دکھ اتنا،
इतनी परेशानी, इतना सदमा अजीम पहुंचा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर कमाल देखो, मक्का फतह हुआ है, मक्का फतह हुआ है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। किसी सहाबी ने आकर के आवाज दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाशी इब्ने हरब अमीर हमजा का कातिल भी। डर के मारे मक्के से ताइफ भाग गए कि मेरा क्या बनेगा। फिर ताइफ में मुसलमान पहुंचे, अंदाजा हो गया कि ये जान नहीं छूटती। अब खुद मदीने हाजिर हुए और मुसलमान बने। हजरत वासी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आप पहचानते हैं, मुझे आप जानते हैं मैं कौन हूं? इधर हां फरमाई, उधर पैगंबर की प्यारी आंखों से आंसू टपकने लगे। फरमाया, वासी, खूब जानता हूं, अच्छी तरह से मुझे पता है, मेरे शेर के टुकड़े करने वाला तू है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए माफी की गुंजाइश है। फरमाया, अल इस्लाम यहदी मा कान क़ब्ला, इस्लाम गुज़िश्ता उम्र के कुफर की हालत के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। मगर वासी, तुझे पता होना चाहिए, मैं फरिश्ता नहीं, मैं खुदा नहीं, मैं अर्श पे बैठने वाला खुदा नहीं, मेरी कुदरत कामला पूरी दुनिया में नहीं चलती, मैं एक इंसान हूं, मैं एक आदमी हूं। मेरी बात सुन ले, तेरा दीन इस्लाम कबूल है, मोतबर है, तू सहाबी है, तुमने मेरी ज़ियारत कर ली ईमान और इस्लाम के बाद। मगर वासी, याद रखना, मेरे सामने ना आना, जब तेरा चेहरा देखूंगा मुझे चचा याद आएगा। वासी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से दूर रहा करता था और रोया करता था, मैंने क्या किया है। हिंदा, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि हिंदा जैसी औरत भी चारों तरफ बैतुल्लाह की कांपती फिर रही है। मैंने तो जिगर चबाया था, मैंने तो कलेजा चबाया था, मैंने तो गुलाम आजाद किया था, कत्ल खड़े होकर के मैंने कराया था, मेरा क्या बनेगा। मदनी करीम से पूछा गया, फरमाया, जाओ जाओ हिंदा से कहो, जब मैंने चादर रहमत वाली बिछा दी, जो पकड़ेगा मैं छुड़ाता नहीं। किस अंदाज के मालिक थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और अखलाक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा पहुंचा था और अखलाक ऐसे करके दिखलाए। अकरमा भाग निकला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उम्मे हकीम दौड़ी दौड़ी जाके देखा किश्ती में सवार हो रहा है समंदर में, जहाज। कहाँ चला है कि तुझे पता नहीं है, मैंने कोई कसर उठा रखी है तकलीफ पहुंचाने में। आज वो आ गए, मक्का फतह हो गया, खुदा जाने हमारा क्या बनेगा। कहने लगी, अकरमा, मैं उस चेहरे का दीदार करके आई हूं, मैं उस सूरत की ज़ियारत करके आई हूं, तुमने सुना है कभी देखा नहीं। अकरमा, आजा मेरे साथ आजा, उसने तो रहमत की चादर बिछा रखी है। कहने लगा, उम्मे हकीम तू मरवाएगी? उसने कहा, मेरी जिम्मेदारी है, तू आ तो सही। बड़ी जबरदस्ती से साथ लेके आई, हर में मोहतरम में दाखिल हुई। अर्ज करने लगी, उम्मे हकीम, या रसूलल्लाह, या अकरमा आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। फरमाया, अकरमा मरहबा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, दीन कबूल करो, मैं तुम्हें सब कुछ माफ करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने टुकड़े करा करके दीन का झंडा लहराया हो, जिन लोगों की जुबानें काटी गई हो, जिन लोगों की आंखें निकाली गई हो, जिन हजरात के बच्चों का कीमा बना दिया गया हो, उन्होंने तो इस्लाम फैलाया नहीं। अब ये 14वीं सदी वाले इस्लाम फैलाएंगे, जिनकी पल्ले न नमाज, न रोजा, न दाढ़ी, न मूछ, न लेना न देना, सुर्खी पाउडर मर्द लगाए फिरे, ये मुजाहिद बनेंगे। तुम मुजाहिदों के जिक्र करने वाली पहले सूरत तो बनाओ, शक्ल तो बनाओ। शक्ल जनानी, चाल मर्दानी, पहचाने भी नहीं जाते, बातें करते हैं। खुदा की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों पे जिन्होंने गुस्ताखी के लिए जुबान चलाई, जिन्होंने बेअदबी की, वो दुनिया में भी मारे गए, आखिरत में जलील हुए। मेरा ईमान है, जो नबी के यारों की शान में गुस्ताखी करता है, उसकी मरते ही शक्ल बदल जाती है, बिल्कुल शक्ल बदल जाती है। तुम्हारा इख्तिलाफ क्या है इनसे, तुम्हारा सहाबा किराम ने खाया क्या है। और ये सुन्नी है ना, सुन हो गए, चाहे जितने काट दो पता ही नहीं चलता। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख से वाकिफ नहीं, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से वाकिफ नहीं। तुम्हें शहीद करबला का तो बड़ा पता है, शहीद मदीना का पता नहीं। शहीद शुहदाए बदर, शुहदाए उहद, शुहदाए हुनैन, जिनको पैगंबर ने अपने
ہونے کے بعد. اور ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے واویلا کیا ہو. 4 عورتیں ہیں جنہوں نے صبر کیا. حضرت صفیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا, جس نے پیارے بھائی کے سیدنا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے دیکھ کر آنسو نہ بہائے, کپڑے نہ نوچے, چہرہ نہ پیٹا. ارے وہ صفیہ جو حضور کے سامنے کھڑی ہے, حضور کے سامنے اپنے ماجائے بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھتی ہے, زبان نہیں, آنکھ نہیں, لب نہیں, ہاتھ نہیں, کان نہیں, جگر نہیں, تمام چیزیں نہیں ہے, مگر صفیہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتی. ان کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے. آج کسی عورت کے سر سے دکاندار جائے گا, کسی عورت کے سر سے کارخانہ دار جائے گا, کسی عورت کے سر سے ذمہ دار جائے گا, کسی عورت کے سر سے ڈاکٹر جائے گا, کسی عورت کے سر سے افسر جائے گا, کسی عورت کے سر سے پیر جائے گا, کسی عورت کے سر سے مولوی جائے گا. خدا کی قسم عائشہ صدیقہ تیرے جگر پہ کیا بیتی ہوگی جب تیرے سر سے امام الانبیاء گئے. جب صحابہ ٹکرے مار رہے ہیں, دیوانے بن کر جنگلوں کو نکل گئے, بیاس ہوئے پڑے ہیں, ابو بکر کی بیٹی اور نبی کی گھر والی ہماری ماں, تیرے جگر پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی. عائشہ صدیقہ نے صبر کیا, نہ کپڑے پھاڑے, نہ چہرہ نوچا, صبر کیے بیٹھی ہے. اور تیسری صابرہ عورت ہے سیدہ نیلہ, حضرت عثمان ذی النورین, امام مظلوم, شہید مدینہ, سامنے ٹکڑے کر دیے گئے حضور کے روزے کے سامنے. ارے بھائی 18 دن کا پیاسا عثمان تڑپا کر شہید کر دیا گیا, مگر نیلہ نے آنسو نہ بہائے, نہ روئی, نہ چلائی. اور چوتھے نمبر پر سیدہ زینب, میں نہیں مانتا جس کو ساری رات حسین نے قرآن سنایا ہو, اللہ کا کلام سنایا ہو, وہ سن کر اس پر عمل نہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو, رک جاؤ, اللہ سے ڈرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. سیدنا حسین کی زبان ہو, خدا کا کلام ہو, اور سننے والی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہو, اگر وہ عمل نہ کرے گی اس دنیا میں اور عمل کون کرے گا. صابرہ ہے زینب, سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا دیکھ کر کوئی واویلا نہیں, جھولی پھیلاتی ہے, آنسو بہاتی, خاموش آنسو بہاتی ہے, اللہ میاں کی حضور میں دعا کرتی ہے, یا اللہ یا جو ہوا قیامت کی سرخروئی عطا فرما. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر مولانا ابوالکلام آزاد کے لکھنے کے مطابق 33 زخم تیروں کے, 34 زخم تلواروں کے ہیں, مگر واہ بہادر کے بیٹے, اب بھی تجھے اسلام کا, دین کا, ایمان کا احساس ہے. فرمایا میں بے نمازی نہیں, دعا کر اللہ ہمیں بھی بے نمازی بنا کے نہ مارے. فرمایا میں قاتل نہیں, میں زانی نہیں, میں شرابی نہیں, میں نے چوری کبھی نہیں کی, میں نے کسی کی آبرو ریزی کبھی نہیں کی, مجھ پر کیوں حملہ کرتے ہو, میرا لہو کیوں بہاتے ہو. فرمایا مجھ سے اس وقت میرے سوا فاطمۃ الزہرا کا لگتے جگر اس زمین پہ کوئی نہیں, شیر خدا کا نور نظر کوئی نہیں. سب کچھ بتایا. کون سنتا, کون مانتا. جب ضد پہ آدمی آ جائے پھر کسی کی بات نہیں سنی جایا کرتی. سب کچھ طے کر دیا, اور ایک بات بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ مانی. بس ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں کھڑے کھڑے اعلان کرو کہ ہم تمہاری بیعت کو تسلیم کرتے ہیں. فرمایا یہ سودا اتنا سستا نہیں, یہ گردن کٹ سکتی ہے, جھک نہیں سکتی, اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, مگر یہ میری گردن بک نہیں سکتی. قیامت تک کی امت کو حسین نے سبق دیا. سارا خاندان دینا پڑے تو دیا جا سکتا ہے, مگر نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی. واہ حسین تو کتنا پکا نمازی, تو کتنا پکا متقی اور پرہیزگار ہے, پینے کے لیے پانی نہیں, اور حالت یہ ہے تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو, لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. کس انداز سے شہادت کا پیالہ پی رہے ہیں.
अल्लाह मियां ने फरमा दिया तेरे दर्जे बुलंद हो, मेरी तौहीद का मसला साफ हो, लोगों को पता तो चल जाए कि मैं ना दूं और कोई नहीं दे सकता, हौज़े कौसर का मालिक तो बना दूं मगर यहां ना दूं, मेरी मर्जी। अल्लाह मियां जानता था वक्त आएगा लोग कहेंगे अली मुश्किल कुशा आओ, अपने खानदान की मुश्किल कुशाई क्यों ना की। सैयदना हुसैन को कहेंगे मुश्किल कुशा, अपने खानदान की मुश्किल कुशाई क्यों ना की। और आज भी कोई नहीं मानता। बलंग आता है ना, अली हैदर मुश्किल कुशा, बेटा बाबे में रोटी खुआ। उधर मुश्किल कुशाई के नारे मारता है, उधर कहना रोटी खुआ। ओ दूर से आएगा नारे मारता हुआ और करीब आके कहेगा बाबे में चाय पिलवा। अच्छा तेरा मुश्किल कुशा तेन चाय भी नहीं पिला सकता। अल्लाह मियां ने साबित कर दिया मुश्किल कुशा मैं हूं, हाजत रवा मैं हूं, माबूद मेरे सिवा कोई नहीं। दर्जे बहुत बुलंद किए, फरमाया हाँ हाँ जो मेरी राह में शहीद हो गया उसकी अजमत इतनी ऊंची, उसकी बर्तरी इतनी ऊंची, उसकी बुजुर्गी इतनी बढ़ गई, ऐ लोगों तुम्हारी जुबानों को इजाजत नहीं कि तुम उन्हें मुर्दा कहो, तुम्हें मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। फरमाया जो लोग मेरी राह में शहीद हो गए वो मेरे पास खाना खाते हैं, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, मैं खाना खिलाता हूं। और मुझे कौन सी डिपू से चीनी लानी पड़ती है, मैं तो जन्नती खाने खिलाता हूं, जन्नत के आला दर्जे के खाने खिला। फरीहीन वो बड़े खुशी से रहते हैं। तमाम शुहदा, शुहदाए बदर हो, शुहदाए ओहद हो, शुहदाए हुनैन हो, शुहदाए तबूक हो, शुहदाए यरमूक हो, शुहदाए मदीना, शुहदाए करबला और शहीद बैतुल्लाह, तमाम के तमाम को खुदाबंद करीम अपने यहां से रोजी खिलाता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को बताया गया कि दीन जो है वो अहम है, दीन पहले है जान बाद में है, ईमान पहले है जान बाद में है, ईमान हमेशा रहेगा, जान आज है और कल नहीं, ये तो सौदा चलता ही रहता है। हमारे तिलावत कुरान का मशगला नहीं, इबादत का मशगला नहीं, खाना पकाना और खेल तमाशे की सूरत बन जाती है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी पे गौर करनी चाहिए। खुदाबंद करीम हम सबको सही सही समझकर और सही सही अमल की तौफीक अता फरमाए और मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए, सारे सहाबा और सारे अहले बैत का गुलाम बनाए, नबी के खानदान का भी ताबेदार बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये बयान? अगर बयान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसे शेयर जरूर करें।